ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ 99% ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਨ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जिंदाबाद जिंदाबाद अमन पसंद लोग जिंदाबाद 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 अमन पसंद लोग जिंदाबाद जिंदाबाद लोग जिंदाबाद 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 पीछे रह गए अपने लाइव चल रहा है। पीछे हो पीछे हो पीछे दोस्ती 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 गोली नहीं गोली चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए नहीं शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए गोली चाहिए
हिंद पाक दोस्ती जिंदाबाद 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 पाक दोस्ती जिंदाबाद 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 नफरत नहीं मोहब्बत चाहिए मोहब्बत चाहिए नफरत नहीं मोहब्बत चाहिए युद्ध नहीं शांति चाहिए शांति चाहिए मिले दो अमन पसंद लोग जिंदाबाद बात करें किसी भी तरीके से हिंद पाक दोस्ती जो लोग 1900 से बिछड़ गए सब तो पहला जीरो लाइन से शुरुआत हुई थी और उससे तो बाद फिर जिथे दोस्ती। हाँ जी मैम, क्या नाम है? नमस्ते दोस्तों, मैं राजस्मृति, मैं लखनऊ से आई हूँ। मैं विशेषतौर से आपका अमृतसर पहुंचे। कुछ दूर में पाकिस्तान है। कल हमारा भारत देश आजाद हो रहा है, पूरे भारतवासी आजादी का जश्न मना रहे हैं। क्या मकसद है आपका यहाँ? हम आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें वो दर्द नहीं भूलना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर्स और फोरफादर्स ने फेस किया। आज़ादी का जो कॉस्ट है वो पार्टीशन था, और पार्टीशन ने बहुत दुख, बहुत दर्द दिया। खास करके मुझे लगता है अमृतसर के लोगों ने बहुत फेस किया, बंगाल के लोगों ने बहुत फेस किया। मैम, जैसे हम लगातार दोस्ती की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ से लगातार हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारे जवानों की शहीदी होती है, फिर भी हम ऐसी लगातार बातें करते हैं। आप ये कितना वाजिब समझते हैं? देखिए, वो दो भाइयों वाली बात है। अगर छोटा भाई बिगड़ा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि उस भाई को छोड़ दें या हटा दें या मार दें, या बच्चे वाली बात है कि अगर आपका बच्चा बदमाश है तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा, भले आप उसको जेल डाल के सुधारिए या कुछ बातें करके सुधारिए, समझाइए। बात अगर घास होने की हो, लड़ाई झगड़े की हो, गाली गलौज की हो, वो बात फिर भी वाजिब है, पर दहशतगर्दी हमला वो वाजिब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और आई थिंक सरकार बहुत हद तक कोशिश कर रही है। अगर 2014 के बाद की हम बात करें, मैंने आज तक 15 अगस्त को ट्रैवल नहीं किया, बिकॉज हमारे घर से वो मैंडेट होता था कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इस दिन आपको नहीं ट्रैवल करना है, शायद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, और हमने देखा है कि ये सब हुआ है। बट 2014 के बाद ये सारे इंसिडेंट्स बहुत कम हुए, और कल 15 अगस्त है, मैं वापस लखनऊ जा रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ कि मैं 15 अगस्त को ट्रैवल कर रही हूँ। तो आई थिंक सुधार आया है, और धीरे धीरे बात करके, डायलॉग करके दोनों तरफ की सरकारें समझेंगी और चीजें सुधरेंगी। मोमबत्ती जगा के जो आप बॉर्डर पे पहुंचते हो, क्या संदेश है, क्या लोगों को संदेश है? कि अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो पीस है। वॉर से कुछ नहीं मिलना है। आप वॉर करके एक टुकड़ा लैंड भले ऑक्यूपाई कर ले, बट आपने मरना ही है। वो टुकड़ा जमीन का यही छूट के जाएगा, तो उसको लहूलुहान ना करें, लड़ाई ना करें। जैसे ये आपकी सोच है, हमारी भी यही सोच है, पर दूसरी तरफ ऐसी सोच नहीं आती। हम देखिए, हिटलर की भी कोशिश करते हैं पर वो हमारे ऊपर हमले करते हैं। बिल्कुल, हिटलर की भी ऐसी सोच थी। अगर हम रावण की बात करें और अपने ग्रंथों की बात करें तो कौरव भी वैसे ही थे। तो ठीक है, जहाँ पे जरूरी है एक्शन लेना, आई थिंक सरकार है, एक्शन ले रही है, और उस तरह से ले रही है कि आम सिविलियंस का नुकसान ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको समझाया जाए, सुधारा जाए, और आम जनता का जितना कम से कम नुकसान हो वो देखा जाए। पाकिस्तान के खिलाफ जो गतिविधियां कर रहा है वो आप कैसे देखते हैं? वो भारत के हित के लिए कर रहा है। भारत के हित के लिए पाकिस्तान क्यों कुछ करेगा, एक वो बात है ना। लेकिन ठीक है, अगर वो चीजें कर रहा है तो डायलॉग से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, और जहां एक्शन लेने की जरूरत है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो उस तरह की भी चीजें की जाएगी। साडा मकसद ये आ कि 1996 तो कुलदीप नैयर की अगवाई च सिलसिला शुरू होया सी। असी हर साल 14 अगस्त की रात नूं सरहद ते आने आ, दोनों देशों के लोगों को अमन ते दोस्ती का पैगाम देने लई। इस बार भी जिहड़ा असी विरसा विहार च सैमीनार किया, उहदे जिहड़ा ऐलाननामा जारी किया, उहदे विच असी कहा कि जम्मू कश्मीर समेत सारे मसले जिहड़े गलबात राहीं हल होने चाहिए। जिहड़ा पाकिस्तान की धरती तो भारत वाले पासे जिहड़ा अतवाद सिद्धत है, वो पाकिस्तान की धरती तो रोकना चाहिए। एक पाकिस्तान की धरती जिहड़ी ड्रग्स दी तस्करी हुंदी है ड्रोनां राहीं, नशिਆਂ की तस्करी हुंदी है ड्रोनां राहीं, ये रुकनी चाहिए। जिन्ने भी साडे मसले आ वो गलबात राहीं हल होने चाहिए। इहदे नाल ही असीं कहा भी 80वें आज़ादी दिवस के अवसर ते
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 1947 ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਘਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਘਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हर साल दोनों सरकारों ਹਾਂਜੀ, हर साल मोमबत्तियां जगा के गल करते हैं वो ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ कर रहे हैं। मेरा नाम प्रज्ञा नारंग है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैम कल 15 अगस्त का पूरे जी। हमारा भारत देश जी। आजादी दिहाड़ा मना रहा, आपको बाघा में पहुंचे, कुछ देर में पाकिस्तान आया। जी। क्या आपका यहाँ पर मुख्य मकसद क्या है फिर आपके पहुंचे? हम यहाँ पे अमन और शांति की बात करने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों में, तो जितना ज्यादा हम डायलॉग से और डिप्लोमेसी से अपनी बात रख सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो हम दोनों गवर्नमेंट्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप डायलॉग से आप अपने मसले सुलझाइए। तो फिलहाल जैसे दोनों देश के बीच हालात इतने अच्छे नहीं है जी। और ट्रेड बंद है, जी। आसपास लोग जा नहीं सकते, अब वो आप कैसे देखेंगे? देखिए मैं जैसे देखती हूँ कि ये हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, मतलब कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो ये समय समय की बात है। आज बुरे हैं, कल अच्छे होंगे। और ये मतलब होगा आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि अभी खराब है तो हमेशा खराब ही चलेंगे। जैसे आप जहाँ पर पहुंचे पिछले काफी लंबे समय ये परंपरा चली आ रही है, पर जी। हालात आप क्या मांग करते हो, कैसे हमारे दोनों देश के जो रिश्ते हैं देशों के वो कैसे होने चाहिए? देखिए मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि ट्रेड होना चाहिए। जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो जैसे हमारे चाइना के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर को लेके या आर्म इश्यूज हो रहे हैं, बट वहाँ पे डायलॉग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है और दोनों तरफ से, तो इसलिए मुझे लगता है जहाँ ट्रेड होगा वहाँ व्यापार होगा, वहाँ वॉर नहीं होगा। अंजना, जैसे पहलगाम हमले के बाद सभी हमारे जो रिश्ते चलते थे, जी। ट्रेड होता था, जी। लोग इधर उधर जाते थे, वो सभी बंद चुके हैं। जी। केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? देखिए केंद्र सरकार ने जो लिए हैं कदम लिए हैं, वो तो उनके हिसाब से जो उन्हें लेने चाहिए थे उन्होंने अपने हिसाब से लिए हैं, बट मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। डायलॉग जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, चाहे ट्रैक 2 हो, बट बातें होनी चाहिए। चाहे आपका जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जितनी भी प्रॉब्लम है, बातें बंद नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो बोलते हैं कि हम टेररिज्म पे बात करना चाहेंगे, हम इस और जैसे पाकिस्तान के कश्मीर में आप जिस पे भी बात करिए, आपका जो भी स्टेलमेट हो, बट आप टेबल पे तो बैठिए। आप कम से कम टेबल पे बैठिए, उसके बाद स्टेलमेट हो कोई बात नहीं, बट आप टेबल पे रेगुलरली एक बार बैठिए। जैसे आप जहाँ पर फोटो बागर कुछ दूर में पाकिस्तान जाते हैं, उसकी बाउंड्री शुरुआत होती है, आपकी तरफ से आज कैंसर मार्च भी किया गया, क्या मकसद था आपके यहाँ पर? देखिए मेरा मकसद यही था कि हम जो है हम सब देश में, हमें ये लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हम अपने सोल्जर्स को बहुत प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो सोल्जर्स का ही होता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सोल्जर्स भी सेफ रहें, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो साइके है वॉर वाली, ये जो बिल्कुल सोच है, ये कहीं ना कहीं पॉपुलेट हो जाती है हमारी सोसाइटी में भी। तो जो क्राइम होता है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है या जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप बात उसकी कर रहे हो बट आपके अंदर वो भावनाएं नहीं आ रही है। तो जितना ज्यादा वो नॉर्मल भी हमारे इसमें सोसाइटी में होता है, तो अगर आपने वायलेंस कम करना है या सोसाइटी को सेफ रखना है, तो ये वॉर की बातें जो है ना वो थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी हमें। जैसे आपने जो भी आजाद देश के, मैं टोटली एग्री हूं आपके साथ, पर अगर दूसरी साइड पाकिस्तान की तरफ से
लगातार दहशतगर्दी हमले किए जा रहे हैं, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में हमले किए जा रहे हैं, पहलगाम में हमला हुआ, बिल्कुल, अनंतनाग में हमला हुआ था। लगता नहीं कि हम दोस्ती चाहते हैं, पर दूसरी तरफ की साइड से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जैसे आर्मी बहुत अच्छी है, जवाब दे सकती है, तो हमें अपने डिप्लोमेट्स को भी थोड़ा सा अच्छा प्रूव करने का चांस देना चाहिए। हम शायद कहीं ना कहीं उनके मतलब की बात जो उन्हें चाहिए, जो उनको फायदा हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ईगो साइड में रख के हमें जब आप उनके ऐसा कुछ ना कुछ सोल्यूशन गवर्नमेंट की डिप्लोमेट्स निकाल सकते हैं जहाँ पे उनका भी कोई फायदा हो, जिससे वो बंद कर सके। आखिरी सवाल है, हम लगातार दोस्ती की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है कि ये सब कुछ गलत भी है। हमारे देश, हमारे नौजवान, हमारे जवान लगातार उनकी हत्या हो रही है, टूरिस्ट पर हमला हो रहा है, पर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी एक्शन ऐसा नहीं लिया जैसे आप लगातार पिछले काफी लंबे समय से अरसे से कर रहे हो। लगता है कि ये गलत नहीं है। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, ये चीजें जो है जब इतने समय से चल रही है, हमने रिश्ते भी डाउनग्रेड कर दी, हमने ट्रेड भी डाउनग्रेड कर दी, बट टेररिस्ट अटैक तो बंद नहीं हुए, है ना। वो तो अब के बाद भी जब तक मतलब ऐसा कोई भरोसा नहीं कि आपने सारे रिश्ते भी डाउनग्रेड कर दिए तभी वो बंद होंगे, ये कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है। तो उससे अच्छा है आप बात करिए, देखिए कि कहाँ पे कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकल सकता है। हमारी तरफ से क्यों बात, कभी ऐसे एक्शन लिया नहीं कि हम भी बात करें भारत के डिप्लोमेट से? कभी उन्होंने ऐसा, कभी हमने देखा नहीं उनकी तरफ से ऐसा कभी कुछ हुआ हो? देखिए, जो बिलावल भुट्टो आए थे गोवा, एक तरह से बहुत पुरानी बात कर रहे हो। पुरानी बात है, ठीक है, चलिए। बट मैं कह रही हूँ कि जो भी उनकी तरफ से भी जरूरी नहीं, क्योंकि मसले तो हमें ही हमारे मसले हैं, हमें तो सॉल्व करने ही है ना। तो चाहे हमारी तरफ से हो, हर बार हमारी तरफ से हो, बट उसका नुकसान तो मिलिट्री में जितना स्पेंडिंग हो रही है हमारा हो रहा है ना, तो हम अपने फायदे का सोचेंगे। तो शायद वो भी तरीके होता है अलग अलग बात करने के। थैंक्स।